Hello everyone, welcome to EduTap. So in this video, I'm going to talk about the book list that is required for the preparation of NABARD Grade A examination. Now this video is important for the students who are doing the self-preparation. If you have a course, you are enrolled in a course, then you do not need to refer to books because as an EduTap, we cover everything, every source that is required. So you just need to cover the course. But there are many students who are doing the self-preparation. So guys, let's talk about subject-wise each and every book that is required. I will start with the elephant in the room, that is Economic Social Issues and ARD, Agriculture and Rural Development. So guys, ARD or ESI को for your ease I have divided into static part and the current affairs part. So static part is the one that is the syllabus जो दिया हुआ है आपके notification में. So if I talk about ARD, you have to understand when I talk about the static part, there is no one book. And you cannot follow a conventional method of covering the book from end to end. ऐसा नहीं होगा कि आप एक book उठाएंगे, उसको end to end पढ़ लेंगे and your preparation is done. Rather, you need to be smart and cover the books topic wise. तो आप एक syllabus का topic लेंगे, उसके अकॉर्डिंग्स में आप उस पर्टिकुलर बुक को रेफर करेंगे. प्लस ऑलवेज यू नीड टू सप्लीमेंट योर प्रिपरेशन विद वीडियोस. अ लॉट ऑफ वीडियोस आर अवेलेबल ऑन यूट्यूब, बहुत सारी हमने बनाई हैं और भी बहुत मिल जाएंगी आपको, तो आपको वो भी रेफर करनी है टॉपिक वाइज. कमिंग टू द बुक्स, सो देयर इज दिस वेरी फेमस बुक बाय अरुण कात्यायन दैट यू हैव टू रेफर, फंडामेंटल्स ऑफ एग्रीकल्चर. फिर आर.के. शर्मा ने एक बुक लिखी है दैट यू कैन रेफर. Again, there's a book on agri engineering by Dr. Jagdishwar Sahai. वो भी आपके agri engineering topics के लिए useful हो सकती हैं. Apart from that, there's a book of Nemraj Sunda. It's a competitive book. वो है ही examinations के लिए. But again, I want to ensure कि आप ऐसा ना करें that you cover all these books end to end. You will be losing your time and your effort. ऐसा नहीं करना है. Topic wise, you cover these books and then go to the videos. This is about the ARD static part. Coming to the ARD current affairs part now. So current affairs are also important in agriculture especially, ठीक है. तो उसके लिए देखिए there are two very important sources. One is your Hindu business line. It has an agri business section. तो आप वो रेफर कर सकते हैं. Then Krishi Jagran is there. Website is there of Krishi Jagran. You can refer to it for the agriculture news. Third is guys any newspaper you can follow or you can refer to PIB. तो वहाँ पे लेकिन you'll have to filter the agri specific news or the news जो कि rural development से related है. That is about the agri current affairs. I also want to tell here कि it's not easy to cover current affairs. तो कहीं compilation मिल जाए आपको, मुझे अभी तक नहीं पता ऐसी कोई compilation जो फ्रीली मिलती हो, तो अगर मिल जाए यू कैन रेफर टू दैट. कुछ वीडियोस आएंगी, आप वो देख सकते हैं, ठीक है. मूविंग ऑन टू द ESI पार्ट, इकोनॉमिक्स एंड सोशल इश्यूज. सो इकोनॉमिक्स एंड सोशल इश्यूज में भी स्टैटिक एंड करंट में डिवाइड करते हैं. टॉकिंग अबाउट द स्टैटिक पार्ट गाइज, सो इकोनॉमिक्स की अगर बात करूँ तो देयर इज अ बुक बाय रमेश सिंह, इंडियन इकोनॉमी बाय रमेश सिंह. सो दिस इज अ बुक दैट इज रिक्वायर्ड फॉर इकोनॉमी, लेकिन अगेन यू कैन नॉट कवर इट एंड टू एंड. सिलेक्टिवली आप टॉपिक्स पढ़ेंगे टू हैव एन अंडरस्टैंडिंग एंड देन ज़्यादा पार्ट करंट अफेयर्स का ही आता है. इकोनॉमिक्स एंड सोशल इश्यूज में सोशल इश्यूज भी एक पार्ट है. बुक ऑन सोशल प्रॉब्लम्स बाय राम आहूजा. इट्स अ वेरी फेमस बुक, आपकी बहुत काम आएगी. बट लेट मी टेल यू, इससे कोई क्वेश्चन नहीं आएगा पेपर में. रादर इट विल बी यूजफुल फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ ESI, ठीक है. So that is about ESI static. These are the two books that you can refer to. Now the current affairs part. This is also a very very important part क्योंकि current affairs play a very important role in ESI. तो वहाँ क्या कर सकते हैं आप? तो guys ESI में I will suggest you that refer to any compilation of the magazine that will be best for you. क्योंकि खुद से रेफर करना टू द न्यूज़ पेपर्स, टू PIB और द गवर्नमेंट वेबसाइट्स विल बी डिफिकल्ट फॉर यू. तो आप करंट अफेयर्स को डिवाइड कीजिए, रिपोर्ट्स एंड एनालिसिस, गवर्नमेंट स्कीम्स एंड द इवेंट्स दैट आर हैपनिंग रिलेटेड टू द सिलेबस एंड इवन जनरल अवेयरनेस भी आता है आपका करंट अफेयर्स की बात करूँ तो. सो ऑल दीज थिंग्स कैन बी कवर्ड फ्रॉम एनी मंथली मैगजीन्स और यू कैन रेफर टू सोर्सेज लाइक विकासपीडिया फॉर द गवर्नमेंट स्कीम्स. फिर आप यूनियन बजट कर सकते हैं, इकोनॉमिक सर्वे है एंड देर आर रिपोर्ट्स बाय द गवर्नमेंट्स, जैसे कि अगर नीति आयोग ने कोई इंडेक्स निकाला या इस तरह की चीज़ें. ऑल दीज यू हैव टू रेफर फ्रॉम ईदर द वेबसाइट इटसेल्फ या न्यूज़पेपर से, या फिर आप एक बेटर रहेगा यू रेफर टू एनी कंपाइलेशन दैट विल बी मोर हेल्पफुल टू यू, ठीक है. अभी कौन सी कंपाइलेशन करें, तो माई सजेशन वुड बी if you are going for free sources, so the compilations that are for RBI, SEBI or NABARD, because these are regulatory bodies. So if you refer to any compilation which is for other banking examinations, वो आपके इतने काम नहीं आएंगी. This you have to keep in mind, ठीक है.
तो दैट इज अबाउट द ESI करंट अफेयर्स पार्ट एंड आई हैव आल्सो ट्राइड टू केटर जनरल अवेयरनेस वाला पार्ट. नाउ ESI ARD हो गया. एक बार GA का थोड़ा सा और मैं आपको रेफरेंस दे देती हूँ फॉर द GA स्टैटिक. ना GA हैज अगेन स्टैटिक एंड करंट अफेयर्स पार्ट. तो करंट अफेयर्स वही है जो आप मैगजीन से पढ़ेंगे, बट इट इंक्लूड्स द स्टैटिक पार्ट, जैसे कि कोई नेशनल स्टेडियम्स हैं, द लोकेशंस ऑफ द स्टेडियम्स, एयरपोर्ट्स, सी पोर्ट्स हो सकते हैं, नेशनल पार्क्स कैन बी देयर. सो दीज आर ऑलवेज डिराइव्ड फ्रॉम द करंट अफेयर्स ओनली. सो यू डू नॉट नीड टू रेफर टू एनी सेपरेट सोर्स फॉर द स्टैटिक पार्ट. रादर जो भी इस तरह की चीज़ें जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड हैं और न्यूज़ में हैं, अब वो कवर कर लीजिए. फॉर एग्जाम्पल, देयर इज दिस रशिया यूक्रेन वॉर चल रही है. You must know the capital and currencies of Russia as well as Ukraine. It's just an example. तो इस तरह आपको GA पे ध्यान रखना होगा with the third eye. These are your 3 merit-based sections, GA, ESI, ARD, out of which total cut-off आपकी count होगी. ठीक है, तो आप current affairs को बहुत ध्यान से करेंगे. It's a very important part. ठीक है, एंड स्टैटिक के लिए मैंने आपको बुक्स बता दी. नाउ आई एम मूविंग टू द नॉन मेरिट सेक्शन, जिसको हम क्वालिफाइंग भी कहते हैं. तो इट हैज़ 5 सब्जेक्ट्स: क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी, देन इंग्लिश लैंग्वेज, फिर आपका कंप्यूटर नॉलेज एंड डिसीजन मेकिंग. तो टॉकिंग अबाउट क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड गाइज, देर आर जनरल बुक्स लाइक RS अग्रवाल एंड S चांद की एक बुक है ऑन द क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड दैट यू कैन रेफर टू. फिर देर आर बुक्स बाय Lucent, CAT, ZAT preparation की. It is better that you refer to these books. Again, I am saying for the qualifying sections, you can not only refer to books. You must refer to the practice quizzes. You must refer to the videos to understand the concepts. तो ये quantitative के लिए 2 books मैंने बताई हैं. Similarly, reasoning के लिए भी S चांद की एक और book है and Lucent's की है, आप उसको देख सकते हैं. It will be helpful for you. Talking about the English language, I recommend to read a newspaper to develop the understanding of English language. उसके अलावा ऐसी कोई बुक नहीं है जिसे आप पढ़ेंगे और आप इंग्लिश में मास्टरी कर लेंगे. Rather, द सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो आपके क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि एंटोनिम, सिनोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, तो नॉर्मन ल्यूइस की एक बुक है, वो आप पढ़ सकते हैं इंग्लिश के लिए. अगेन आई वुड से न्यूज़पेपर वुड हेल्प मोर, क्योंकि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड अंडरस्टैंडिंग में इट विल हेल्प बेटर. तो कंप्यूटर नॉलेज पे आते हैं अब हम. कंप्यूटर नॉलेज के अगर आपको टॉपिक्स पता है कौन से आने हैं एग्जामिनेशन में, तो आप कोई भी बुक रेफर कर सकते हैं. वैसे आई वुड सजेस्ट अ बुक बाय लूसेंट. कंप्यूटर नॉलेज पे बहुत सारी बुक्स मिल जाएंगी. अभी वो टॉपिक्स कौन से हैं, तो आई सजेस्ट टू रेफर टू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, उनको देखिए एंड मार्क योर टॉपिक्स. लास्टली, डिसीजन मेकिंग. इट इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड अ सब्जेक्ट जो नया है, बच्चे बहुत डरते हैं, लेकिन ऐसा डरने की ज़रूरत नहीं है. इट्स जस्ट अ 10 मार्कर सब्जेक्ट, और अभी तो कट ऑफ ऑल्सो वेंट जस्ट 1.25, तो कट ऑफ भी हाई नहीं है. तो क्या करना है डिसीजन मेकिंग के लिए? देर आर 2 बुक्स, वन बाय LM प्रसाद ऑन डिसीजन मेकिंग एंड देर इज अनदर बुक दैट इज TN छाबड़ा. ये दोनों बुक्स आप कवर टू कवर नहीं पढ़ेंगे. यू मार्क द टॉपिक्स बाय गोइंग थ्रू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एंड देन रेफर टू ओनली दोज टॉपिक्स इन बुक्स में से. यही आपके लिए बेस्ट रहेगा. इफ यू फाइंड वीडियोज, अगेन सप्लीमेंट योर प्रिपरेशन विद वीडियोज. सो दीज आर ऑल द बुक्स दैट आर रिक्वायर्ड फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ NABARD ग्रेड ए. आई वॉन्ट टू इंश्योर कि आप लोग सही पढ़ें, अपना एफर्ट सही दिशा में दें. तो अगर आपको लगा कि ये वीडियो आपके काम आई एंड यू आर डूइंग अ सेल्फ प्रिपरेशन, तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताइए मुझे. एंड अगेन आई एम सेइंग, आपके पास कोर्स है, आप किसी भी कोर्स से पढ़ रहे हैं, देन यू डू नॉट नीड टू रेफर टू दीज बुक्स. आप क्या कर सकते हैं, न्यूज़पेपर कभी कभी पढ़ सकते हैं. ठीक है, तो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट. आई विल बी वेटिंग फॉर योर कमेंट्स कि आपको ये कैसे यूजफुल लगा या नहीं. आई विल सी यू सून.